Namaskar to all my friends. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I bring Series 10 MCQ questions on administration and finance. And in this series, I will discuss procurement of services related to non-consultancy services. In my previous video, already I have discussed consultancy services. Today, I will explain non-consultancy services and also I will discuss 10 MCQ questions. My friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. And also, my friends, in my description box, one link is there. Please click on it and join my Telegram channel so that you can get all the videos. Definitely, this series would be exciting for you. You can get complete information about the non-consultancy services. It is very important one related to the incoming principal exams and also for other departmental exams. So my friends, you know that two exams are around the corner. One is the UPSC principal exam and Eklavya Model Residential School exam. And also in 2022 you will face KVS and NVS principal exam, and also it would be useful for state government principal exams. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. So now I am going to discuss non-consultancy services related to the procurement of services of GFR 2017, and it is latest one. See, the first one I will discuss the complete explanation. Non-consulting services में क्या क्या आता है? It includes जो outsourcing में, it means it is outsourcing of services when we hire services from outside. क्या क्या उसमें होता है? Hiring of vehicle, maintenance, security, photocopier service, building facilities management, office errand services, drilling, aerial photography, satellite imagery and mapping, ये सब कुछ आता है. तो बहुत कॉमन चीज़ है. Hiring vehicle from outside. For maintenance also, the government departments hire people from outside. Security guards also recruit security guard in the campus of different government departments or different government offices from outside security agency. Similarly, photocopier service, building facilities management, office errand services, extra people needed in offices due to heavy workload. For this reason also, hire people from outside. Again, drilling, aerial photography, satellite imagery and mapping, ये सब नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आता है. चलो नेक्स्ट पार्ट. A ministry or department procure certain non-consulting services in the interest of economy and efficiency. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. Procure non-consulting services in the interest of economy and efficiency. जो government departments and offices, they hire people from outside for different purposes, for different services, and main reason is efficiency. So outside people, they must be efficient one. The departments and offices, they need efficient service. Okay. And related to the economy, hire services from outside in least cost. Okay, one side efficient people, those are expert in particular field, they hire from outside, and also hire services in least cost. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. Okay,
Ministry or department procures certain non-consulting services in the interest of economy and efficiency. Identification of likely contractors. The ministry or department should prepare a list of likely and potential contractors on the basis of formal or informal inquiries from other ministries or departments and organizations involved in similar activities. Scrutiny of yellow pages. येलो पेजेस बेसिकली एक टेलीफोन डायरी होता है और एजेंसीज का डिटेल्स होता है, बिजनेस पर्सनल्स का डिटेल्स होता है एंड ट्रेड जर्नल्स. सो पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स का लिस्ट बनता है. क्लियर? कैसे बनेगा? तो ये जो इंफॉर्मेशन basically collected from other ministries or departments, those who involved in similar activities. येलो पेजेस को स्क्रूटिनी करके, क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स का लिस्ट होता है. क्लियर? तो उसमें से भी चूज किया जा सकता है ट्रेड जर्नल्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, लिस्ट आउट द पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके, फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन ऑफ टेंडर इंक्वायरी. द डिटेल्स ऑफ वर्क और सर्विस टू बी परफॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. टेंडर इंक्वायरी में कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. वन इज द डिटेल्स ऑफ वर्क और सर्विस टू बी परफॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. किस तरीके का काम करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर. What type of facilities and inputs which will be provided to the contractor by the ministry or department. इस तरीके का फैसिलिटीज़ और किस तरीके का इनपुट्स प्रोवाइड करेगा कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. ये भी इंक्वायरी में रहेगा. एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड वर्क और सर्विस. क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो भी टेंडर इंक्वायरी में रहेगा. The statutory and contractual obligations to be complied with by the contractor. तो ये सब टेंडर इंक्वायरी में आ जाता है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये सब टेंडर इंक्वायरी होता है. ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, कॉन्ट्रैक्टर्स से. इन्वाइटेशन ऑफ बीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बीट एस्टिमेटेड वैल्यू अप टू ₹10 लाख और लेस. यदि एस्टिमेटेड कॉस्ट अप टू ₹10 लाख और लेस है, इसमें लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी. लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में फर्स्ट वन स्क्रूटिनी करके, ऑलरेडी तो लिस्ट बन चुका है, पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स का लिस्ट है, उनको स्क्रूटिनी किया जाएगा. स्क्रूटिनाइज द प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ लाइकली कॉन्ट्रैक्टर्स. स्क्रूटिनी करने के बाद एंड इशू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी टू देम. उनको LTE इशू किया जाएगा, आस्किंग फॉर देयर एफर्ट्स बाय स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम एटसेट्रा. एक स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, वो स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम के अंदर वो सबमिट करेंगे. ऑलरेडी तो कॉन्ट्रैक्टर्स का लिस्ट बन चुका है, पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स का. अगेन उनको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा. ठीक है, स्क्रूटिनी करने के बाद जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको LTE इशू किया जाएगा, जो टेंडर पेपर इशू किया जाएगा एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर. तो यहां पर जो है द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आइडेंटिफाइड फॉर इशूइंग LTE शुड बी मोर देन 3. जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो भी लिस्ट बन चुका है, उनमें से स्क्रूटिनाइज करके लिमिटेड पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स को चूज किया जाएगा. वो सभी समय 3 से ज़्यादा होना चाहिए. द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स सो आइडेंटिफाइड फॉर इशूइंग LTE शुड बी मोर देन 3. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. राइट, ये हो गया लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में.
ठीक है। तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में ऑलरेडी पोटेंशियल कंट्रैक्टर्स का लिस्ट बन चुका है फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व इन सिमिलर एक्टिविटीज, फ्रॉम ट्रेड जर्नल्स, फ्रॉम येलो पेजेस। फिर उनको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा और लिमिटेड कंट्रैक्टर्स को एलटी इशू किया जाएगा, टेंडर पेपर्स इशू किया जाएगा और स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर वो सबमिट करेंगे। और यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ कंट्रैक्टर्स मोर देन 3 होना चाहिए। और ये जो है जब एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹10 लाख और लेस होगा, ₹10 लाख और लेस, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। नेक्स्ट वन, फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू अबव ₹10 लाख, यदि एस्टिमेटेड वैल्यू मोर देन 10 लाख होता है तब एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट शुड इशू एडवर्टाइजमेंट इन सच केस should be given on CPPP, should be given on CPPP, JMSPV website of concerned ministry or department, Central Public Procurement Portal, Government E-Market Special Purpose Vehicle JM Portal और कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का वेबसाइट में जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा, इसमें पूरा मेंशन होगा कैसे टेंडर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, जो भी प्रोसीजर्स है, कैसे बीड सिलेक्शन होगा, किस तरीके से बीड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पूरा दिया गया है। और स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स को जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स वो बिडिंग में शामिल होना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे और स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर वो सबमिट करेंगे। और उसमें पूरा इंफॉर्मेशन है कैसे सबमिट किया जाएगा, क्या स्पेसिफिक डेट एंड टाइम है और क्या प्रोसीजर्स है, कि कैसे एवेलुएट किया जाएगा उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, ये पूरा इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो यहाँ पर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी आ गया जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट इज मोर देन ₹10 लाख। और यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ये कहाँ पर एक्चुअली टेंडर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा, तो कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो वो JMSPV, CPPP एंड कंसर्न मिनिस्ट्री और वेबसाइट में टेंडर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेट बीड शुड नॉट बी कंसिडर्ड आफ्टर द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। जो स्पेसिफिक डेट एंड टाइम दिया गया है उसके अंदर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स बिडिंग में शामिल होना चाहते हैं वो सबमिट करेंगे। लेट बिड्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन रिलेटेड टू द एवेल्युएशन ऑफ बिड्स, द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड एवेल्युएट। फिर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जितना कॉन्ट्रैक्टर डाल चुके हैं उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को एवेल्युएट किया जाएगा, उसको सेपरेट किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा, उनको रैंक दिया जाएगा और फाइनली जो सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर को चूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है एवेल्युएशन, सेग्रीगेशन, रैंक एंड सिलेक्ट द सक्सेसफुल बिडर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एवेल्युएशन, सेग्रीगेशन, रैंक एंड चूज द सक्सेसफुल बिडर। देन और एक है प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज बाय नॉमिनेशन। द प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज बाय नॉमिनेशन, जब कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को चूज करता है नॉमिनेशन में, इससे पहले कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर, उसके ऊपर द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में डू सो इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर। और उनको जस्टिफिकेशन भी देना है, कंप्लीट जस्टिफिकेशन, क्यों एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को नॉमिनेट किया गया नॉन कंसल्टिंग सर्विस के लिए, तो कंप्लीट जस्टिफिकेशन देना चाहिए। और वहां पर कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट है, ठीक है, और उनको जस्टिफिकेशन, कंप्लीट जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों एक कॉन्ट्रैक्टर को नॉमिनेट किया गया। और उससे पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो कंसल्ट करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
रिलेटेड टू द नॉमिनेशन। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट may do so in consultation with the financial advisor. In such cases, the detailed justification, the circumstances leading to such procurement by choice, and the special interest or purpose it shall serve. तो दो तीन चीज़ यहाँ पर याद रखना है, डिटेल जस्टिफिकेशन देना है और ऐसा भी सर्कमस्टांस है जहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्रैक्टर को दिया जाएगा और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का स्पेशल इंटरेस्ट भी है कि जो नॉन कंसल्टिंग सर्विस का कंट्रैक्ट दिया जाएगा एक पर्टिकुलर कंट्रैक्टर को दिया जाएगा और फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑल्सो, ये चीज को भी ध्यान देना है, राइट। द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड बी इन्वॉल्व थ्रू आउट द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड बी इन्वॉल्व थ्रू आउट इन द कंडक्ट ऑफ द कंट्रैक्ट एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्टर। सक्सेसफुल जो कंट्रैक्टर है उसको दे दिया गया, फिर कंटिन्यूसली इंटरमिटेंटली कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करेगा उसका परफॉर्मेंस को, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। अभी कुछ एमसीक्यू के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नॉन कंसल्टिंग सर्विस इंक्लूड्स, ये मैं बता चुका हूं, हायरिंग व्हीकल, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, ऑफिस एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो 4 ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, फॉर हायरिंग व्हीकल, फॉर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, फॉर ऑफिस एराउंड सर्विसेज, ये सभी नॉन कंसल्टिंग सर्विस में आता है। बेसिकली ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स दे हायर व्हीकल फ्रॉम आउटसाइड, फॉर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑल्सो दे हायर पीपल फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज, ऑफिस एराउंड सर्विसेज इट मीन्स दे ऑल्सो सम एक्स्ट्रा पीपल नीडेड इन द ऑफिस फॉर क्लरिकल वर्क्स, ओके, फॉर दिस रीजन ऑल्सो हायरिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड। तो ये सभी नॉन कंसल्टिंग सर्विस में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज बिट डी। Question number 2, the ministry or department prepare a list of potential contractors on the basis of formal or informal inquiries from scrutiny of yellow pages, be it trade journals, be it see other ministries or departments, all of the above। हम जानते हैं, अभी डिस्कस किया, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो एक पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स का लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। सो दे collect information from other ministries or departments, those who involve in similar activities, or from trade journals or scrutiny of yellow pages। तो ये सब आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। आंसर इज बी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विस अप टू ₹10 लाख और लेस, हम जानते हैं कि अप टू 10 लाख रुपीज और लेस 4 ऑप्शंस आर देयर, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। तो यहां पर जो आंसर है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, क्योंकि जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन कंसल्टिंग सर्विस इट इज अप टू 10 लाख और लेस होता है, मैं बता चुका हूं कि ऑलरेडी पोटेंशियल कंट्रैक्टर्स का लिस्ट बन चुका है और उनको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। तो स्क्रूटिनी करने के बाद लिमिटेड कंट्रैक्टर्स को, लिमिटेड पोटेंशियल कंट्रैक्टर्स को चूज किया जाएगा और इट शुड बी मोर देन 3 से ज्यादा होना चाहिए, ओके। फिर इनको जो टेंडर पेपर है वो इश्यू किया जाएगा और वो स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर वो सबमिट करेंगे, ठीक है। और जिसका सर्विस इट मीन्स कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री डिटेक्ट करेगा कि एफिशिएंट सर्विस एक्चुअली एक पर्टिकुलर कंट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा और लीस्ट कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा, बेसिकली इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी के ऊपर एम्फसाइज होता है, तब उसको फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो ये लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, अप टू ₹10 लाख और लेस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर इशूइंग लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी फॉर नॉन कंसल्टिंग सर्विस शुड बी। तो अभी जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कितना मिनिमम कंट्रैक्टर्स को चूज किया जाएगा, तो अभी हम डिस्कस किए मोर देन 4, मोर देन 3, एटलीस्ट 3, लेस देन 3, मोर देन 3। नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जो कंट्रैक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंट्रैक्टर्स, वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर देन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 5,
फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन कंसल्टिंग सर्विस अबोव ₹10 लाख, यदि एस्टिमेटेड वैल्यू मोर देन 10 लाख होता है तब 4 ऑप्शन है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। जो मोर देन 10 लाख अभी मैं डिस्कस किया एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। यदि एस्टिमेटेड वैल्यू मोर देन 10 लाख होता है तब यहाँ पर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, स्पेशल पर्पज व्हीकल जेम पोर्टल में और कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। और स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स बिडिंग में शामिल होना चाहते हैं वो सबमिट करेंगे। फिर इनको सबमिट करने के बाद कोई लेट बिड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो स्पेसिफिक डेट एंड टाइम दिया गया है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में उसके अंदर सबमिट किया जाएगा और पूरा रूल रेगुलेशन उसमें होगा कि क्या व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू एवेलुएट द बिड्स, ओके, व्हाट आर द पैरामीटर्स, ओके, इन व्हाट केस एक्चुअली द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिजेक्टेड, एवरीथिंग वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है। लेट बिड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट, और एवेलुएट किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा, उनको रैंक दिया जाएगा, फिर फाइनली सक्सेसफुल बिडर को चूज किया जाएगा। तो ये एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है। आंसर इज बीट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विस bids received after the specified date and time should be considered. 4 options, bit A yes, bit B no, bit C depend on the concerned ministry or department, bit D ignored in GFR. तो अभी हम डिस्कस किए कि जो लेट बिड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम दिया जाता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में और एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में। लिमिटेड टाइम, एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा, उसके बाद एक्चुअली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहां पर वही दिया है, इन केस ऑफ नॉन कंसल्टिंग बिड्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम शुड बी कंसीडर्ड। नो, आंसर इज नो, क्योंकि लेट बिड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आंसर इज बिट बी, नो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। इन केस ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर ए टेंडर इंक्वायरी। एक प्रिपेयर होगा टेंडर इंक्वायरी। टेंडर इंक्वायरी में क्या क्या होगा? द डिटेल्स ऑफ वर्कर, ये 4 ऑप्शंस दिया गया है। द डिटेल्स ऑफ वर्कर सर्विस टू बी परफॉर्म बाय द कॉन्ट्रैक्टर, द फैसिलिटीज एंड द इनपुट्स व्हिच विल बी प्रोवाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी मेट बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड वर्कर सर्विस, the statutory and contractual obligations, the statutory and contractual obligations to be complied with by the contractor। ये 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो ये जो है बीट ए स्टेटमेंट्स आई एंड ट्रिपल आई आर करेक्ट वन, ओनली स्टेटमेंट आई वी इज करेक्ट वन, स्टेटमेंट्स आई एंड आई वी आर करेक्ट वन, बीट डी ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। आंसर इज बीट डी ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। क्योंकि उसमें देख लीजिए, क्योंकि टेंडर इंक्वायरी में फर्स्ट वन, द डिटेल्स ऑफ वर्कर सर्विस टू बी परफॉर्म बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो किस तरीके का वर्क्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्टर को कंप्लीट करना है, ये टेंडर इंक्वायरी में है। व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटीज एंड इनपुट्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये भी है। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के ऊपर है। और लास्ट वन, द स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस टू बी कंप्लाइड विथ बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ये चारों है, अभी टेंडर इंक्वायरी में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। आंसर इज बीट डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज बाय नॉमिनेशन, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसल्ट विथ बीट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, अंडर सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री, अंडर सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, HOD ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, और नॉन कंसल्टेशन। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन कंसल्टिंग सर्विस बाय नॉमिनेशन, द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर
कंट्रैक्टर को दे वांट टू चूज एंड दे वांट टू प्रोवाइड कंट्रैक्ट for certain reason, for the interest of the ministry or department, for specific purpose, or in some circumstances also they want to choose the particular contractor, and also they must justify, the concerned ministry or department must justify, proper justification they want to give also to choose the particular contractor by nomination. मगर इसके पहले हम जानते हैं कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर, जो कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मस्ट कंसल्ट विथ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर नॉमिनेट द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर? तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए नॉमिनेशन में जो होता है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, फॉर स्पेसिफिक पर्पज, इन सम सर्टन सर्कमस्टांसेस, सपोज इन सम इमरजेंसी case the department or ministry want to choose the particular contractor for non-consulting service, but before that the competent authority must consult with the financial advisor. Right, answer is bit A. तो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे. In case of evaluation of bids for non-consulting service, the concerned ministry or department should evaluate and segregate the bids, rank the responsive bids, सिलेक्ट द सक्सेसफुल बिडर फॉर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव. ये जो प्रोसीजर होता है ये ऑल ऑफ द अबव है. जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाता है, पहले उसको एवेलुएट किया जाता है, एवेलुएट करने के बाद उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, फिर उनको रैंक दे दिया जाता है. रैंक देने के बाद सक्सेसफुल बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है. सिलेक्ट द सक्सेसफुल बिडर फॉर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. इसको भी डिस्कस कर चुका हूं. आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए. द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड इश्यू एडवर्टाइजमेंट व्हेन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विस डैश अबव रुपीज 25 lakhs, अबव रुपीज 15 lakhs, अबव रुपीज 10 lakhs, लेस देन और इक्वल टू रुपीज 10 lakhs. आंसर इज अबव रुपीज 10 lakhs. एस्टिमेटेड वैल्यू अबव रुपीज 10 lakhs. ये केस में एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी होगा. क्लियर? बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल उसका पोर्टल में, और कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को. स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को बिडिंग डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है और उसको सबमिट करना है. वो कैसे सबमिट करेंगे, एवेल्युएशन प्रोसीजर्स क्या है, क्या पैरामीटर्स है, कब उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैसे सक्सेसफुल बिडर को चूज किया जाएगा, पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में. उसको फ्रीली वो डिफरेंट साइट से मैं जो बताया वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो बिडिंग में शामिल होना चाहते हैं वो डाउनलोड करेंगे फ्रीली. पूरा उनको प्रोसीजर्स को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री मांगा है उसको उनको देना पड़ेगा, और स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के अंदर कोई लेट बिड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा. और उसके बाद उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को एवेलुएट किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा, रेस्पॉन्सिव बिड्स को रैंक किया जाएगा, फिर फाइनली सक्सेसफुल बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. ये आज का टॉपिक था. सो माय फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, एंड इन दिस वीडियो ऑल्सो यू गो टू माई सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए. पूरा आपको सभी वीडियो मिल जाएगा सभी टॉपिक्स के ऊपर. ओके, सो 2 प्रिंसिपल एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, एंड ऑल्सो you will face principal exams of NVS, KVS and other state boards in subsequent time. Please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you and namaskar.